everyone, welcome to Maneuver, and this is the part 8 series guys. In this series TISNET 2023 general awareness section के इस series में part 8 we will discuss today, and this is the August month current affairs. So continue, you people are getting the general awareness section important topics and related to that topic important content. For example, award section and census related question, important revolution, as well as current affairs month wise. It means from May, June, July, and this is the August month. So guys, in this series we will discuss most expected question from the different area. It means government, national level news, international level news. It means important personality. It means totally overall TIS oriented questions based on the last 5 year. बेस्ड ऑन द लास्ट 5 ईयर क्वेश्चन एनालिसिस, जो जिस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में फ्रीक्वेंटली रिपीट हो रहे हैं उन्हीं मोस्ट ऑफ द एरिया से. फॉर एग्जांपल ऑबिचरी सेक्शन तो आर्ट एंड कल्चर से कनेक्ट करके क्वेश्चन आता है, स्पोर्ट्स सेक्शन सेंसेस से क्वेश्चन, अवार्ड सेक्शन से क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट रिवोल्यूशन एवरी ईयर रिपीट होता है. सो यू कैन if you will start from the part 1 and continue follow करोगे till exam, we will continue update you. So guys, easily 30 plus marks you can get, and as well as you will get the better idea from which area, which type of questions may be possible to come from the current affairs as well as other area. For example, award, revolution, census, and the sports section, sports award, and some history, geography, polity also we will update you in upcoming session. Okay, so you can follow us. And guys, one more important news is here. If you are seriously planning for the TIS 2023, अभी बहुत कम टाइम बचा है. So as per this time period we started the batch sincerely preparations के लिए dedicated batch है to the right content के साथ. So if you are targeting 2023, otherwise if you are planning for 2024, so here you can inquire. And what you will get guys, so live class and classroom. If you are Mumbai based, so classroom lectures के लिए आप inquire and enroll कर सकते हो, otherwise live lecture के लिए inquire कर सकते हो. Books, e-books you will get here. Shortcut method you will learn, doubt classes होंगे, recorded video for clear the basic concept, test to improve your speed, mock test, full length mock test to appear as a actual exams level questions, and उस सिनेरियो को आप इन्वायरमेंट को फील करके इसको अपीयर कर सकते हो. 10,000 प्लस क्वेश्चन एंड मेंटरशिप, मेंटर विल गाइड यू. सो गाइज, इफ यू आर टारगेटिंग द मुंबई, गुवाहाटी, तुलजापुर एंड हैदराबाद campuses of TIS, so here you can inquire 8828581455, or you can visit our website. Okay, so now come to the current affairs part. This is the important information for you. So if we will talk about the first important news from the August month, so here you can see the first news as a national point of view. It means इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट न्यूज बन सकता है एग्जाम्स के लिए. सो यहाँ पे देख सकते हो वर्ल्ड हाईएस्ट चेनाब रेलवे ब्रिज इनैगुरेटेड. सो यहाँ पे एक हाईएस्ट रेलवे ब्रिज का इनैगुरेशन हुआ है चेनाब, जम्मू एंड कश्मीर में. सो बेसिकली अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो तो जब भी सस्पेंशन ब्रिज का इनैगुरेशन हुआ था वो भी एग्जाम्स में क्वेश्चन आया था. एज वेल एज चेनाब रिवर, दिस इज अ सब्सिडरी रिवर ऑफ इंडस रिवर, ये भी क्वेश्चन एग्जाम्स में देखा गया टिस के एग्जाम्स में. सो गाइज, ऐसे ही क्वेश्चन कनेक्ट होते हैं. फॉर एग्जांपल, बिकॉज ऑफ दिस ब्रिज चेनाब रिवर इज अ पार्ट ऑफ द करंट अफेयर. सो पॉसिबिलिटी आपको चेनाब रिवर पूछ लेगा. चेनाब रिवर इन विच स्टेट, चेनाब रिवर इज अ सब्सिडरी रिवर ऑफ विच रिवर, आपको इंडस रिवर दे देगा, यमुना दे देगा, गंगा दे देगा, कावेरी दे देगा. इस तरह से क्वेश्चन फॉर्म होते हैं. सो इस टाइप से आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज करनी है करंट अफेयर्स को कनेक्ट करके स्टैटिक जीके को. Okay, so here the golden joint of the world highest railway bridge over the river Chenab was inaugurated. ठीक है, so बाकी कंप्लीट डिटेल्स है. आप इसको कंटिन्यू न्यूज़पेपर फॉलो करते हो तो आप एक हैबिट होगी तो आपको पता होगा. अगर से आप करंट अफेयर्स के कोई रिसोर्सेज फॉलो करते हो दैट इज फाइन, अदरवाइज यू कैन फॉलो आवर रिसोर्सेज, दैट इज वेरी डिजाइन इन अ गुड वे. कंप्लीट डिटेल्स होता है उसमें. फॉर द फर्स्ट टाइम एवर सिंस इंडिपेंडेंस, श्रीनगर विल बी लिंक टू द रेस्ट ऑफ इंडिया आफ्टर over arch deck on the world highest single arch railway bridge over the river Chenab. So this is the world highest rivers, that is also the one record. ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन बेसिकली एग्जाम्स में फॉर्म होते हैं. दैट इज अ यूनिक क्वेश्चन. Now see the next important news. India first 3D printed post office to soon come up in Karnataka state. So कौन से स्टेट में आ रहा है? कर्नाटका स्टेट. ये आपको पता होना चाहिए. This is the India first 3D printed post office is slated to come up in the Bengaluru, Karnataka,
and will cost around the 1/4 of amount they spent on traditional building. So जो as a traditionally develop होते हैं, build होते थे, उसका 1/4 इसकी costing है. But important part is that this is the first 3D printed post office. So that's why it is possible to come in your exam. So थोड़ा सा aware रहना है आपको. Now next one is the PM Modi. This is the very important news, guys. PM Modi to inaugurate the pedestrian only Atal Bridge. This is the only for the pedestrian. So bridge on a Sabarmati River. Sabarmati River, where is it? In Gujarat state. Okay, so ये भी first time है only for the pedestrian. So that's why it's important. Inaugurated by the Prime Minister Narendra Modi. So ये सब सारी चीजें importance create कर देती है किसी भी चीज की. Okay, so expected हो जाता है exams के लिए. In Gujarat, Ahmedabad city, Prime Minister Narendra Modi will officially open the pedestrians only Atal Bridge over the Sabarmati River. PM Modi is at his home state for the 2-day visit. So guys, इस वीडियो को पॉज करके आप कंप्लीट डिटेल्स भी पढ़ सकते हो, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा. इफ आई विल रीड द कंप्लीट डिटेल तो वीडियो काफी लेंथी हो जाएगा, एंड आई हैव टू कवर द इंटायर मोस्ट एक्सपेक्टेड 30 क्वेश्चन फ्रॉम द अगस्त मंथ, जो कि हाईली एक्सपेक्टेड होते हैं एग्जाम्स के लिए, तो वो सारे कवर कर रहा हूँ. तो आपको हिंट दे रहा हूँ हेडिंग से, यू कैन कनेक्ट विद द न्यूज, आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी. इन डिटेल्स यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन रीड. Okay, now come to the next one. ASEAN has celebrated its 55th anniversary in 2022. So ASEAN nation group is very important. As a nation group point of view, ASEAN is a very important, and most of the time I had seen in exams ऐसे क्वेश्चन फॉर्म होते हैं कि is it India is a part of ASEAN nation, इस तरह से क्वेश्चन आता है. So remember रखो, ASEAN India is not a part of ASEAN nation, but India played a very important role in ASEAN nation. Okay, so 10 countries हैं, 10 countries is a part of the Asian nation, and Jakarta, Indonesia, Jakarta is the headquarter of it. Okay, and India is not a part of Asian nation. इतना आपको रिमेंबर रखना है, बट इंडिया का रोल काफी इंपॉर्टेंट होता है. यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर प्रसाद congratulated the Asian member state and secretary general on their 55th anniversary. In a tweet he said celebrate. So whatever the information is there, but Asian nation group is important as a nation group point of view. Okay, Gustavo Petro won in as a first leftist president of Colombia. देखो यहाँ पे भी फर्स्ट है, इस तरह का जो वर्ड होता है ना, सो इंटरनेशनल न्यूज से इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी से क्वेश्चन फॉर्म होते हैं. सो फर्स्ट लेफ्टिस्ट प्रेसिडेंट ऑफ कोलंबिया. सो ये सिर्फ इतना आपको रिमेंबर रखना, इनका नाम, एंड ही इज अ प्रेसिडेंट ऑफ कोलंबिया, दैट्स इट. ओके, सो इनका नाम रिमेंबर रखो बिकॉज ही इज अ फर्स्ट लेफ्टिस्ट प्रेसिडेंट, सो दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट, एंड कोलंबिया इज अ इंपॉर्टेंट नेशन एज अ नेशनल इंटरनेशनल न्यूज पॉइंट ऑफ व्यू. आफ्टर दैट रसिया सक्सेसफुली लॉन्च्ड ईरान सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट. सो ये भी एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी फील्ड से इंपॉर्टेंट है. रसिया रॉकेट हैज सक्सेसफुली लॉन्च इरानियन सैटेलाइट इनटू द ऑर्बिट साउदर्न कजाकिस्तान, एंड Iranian satellite name Khyam. इसका नाम थोड़ा सा अगर रिमेंबर कर सको तो दैट विल बी बेटर, अदरवाइज ठीक है. Khyam into the orbit by the Syzyk rocket from the Russian Lis Baikonur launch facility in Kazakhstan. ठीक है, सो सिर्फ यहाँ पे इस रॉकेट का नाम you can remember as a science and technology point of view. And see the NASA Artemis थर्ड मिशन मून लैंडिंग लोकेशन. सो यहाँ पे मिशन मून पे लैंडिंग लोकेशन को नासा ने रिलीज किया है. सो अब आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये जो आर्टमीज बोलते हैं इसको, आर्टमीज थर्ड मिशन, इट्स रिलेटेड टू व्हाट, इट्स रिलेटेड टू व्हाट, एंड इट इज अ मिशन ऑफ विच स्पेस एजेंसी. इट मीन नासा का है, इंडियन स्पेस एजेंसी इसरो का है, या फिर जापानीज स्पेस एजेंसी का है, या फिर चाइनीज स्पेस एजेंसी का है. सो ऐसे डिफरेंट टाइप के स्पेस एजेंसीज के नाम से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि दिस मिशन इज रिलेटेड टू विच स्पेस एजेंसी, अदरवाइज दिस मिशन इज रिलेटेड टू विच प्लैनेट, इट मींस मार्स के लिए या मून के लिए, इस तरह से क्वेश्चन होते हैं. ठीक है, सो आपको रिमेंबर रखना है कि दिस आर्टमीज थर्ड मिशन इज इट्स रिलेटेड टू मून. अब यहाँ पे 13 प्लेस है, 13 प्लेस का नाम रिमेंबर नहीं करना है, दैट्स इट. इतना सिर्फ आप रिमेंबर रखो, इट्स रिलेटेड टू द नासा एंड दिस इज द मिशन फॉर मून. ओके, नेक्स्ट वन इज द जयशंकर अनवेल द बस्ट ऑफ महात्मा गांधी इन पैराग्वे. सो जो स्टैचू है, छोटी सी स्टैचू होती है, वो यहाँ पे इनॉग्रेट किया है हमारे एक्सटर्नल फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर प्रसाद ने. अब कहाँ पे किया है तो पैराग्वे, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से. सो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर अनवेल द बस्ट महात्मा गांधी इन द पैराग्वे एंड विजिटेड द हिस्टोरिक कासा डे ले
इंडिपेंडेंसिया फ्रॉम वेयर द साउथ अमेरिकन कंट्री इंडिपेंडेंस मूवमेंट स्टार्टेड मोर देन 2 सेंचुरी एगो. सो ये थोड़ा सा हिस्टोरिकल पॉइंट है, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट एज अ करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि हमारे फॉरेन जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने इनैगोरेट किया है महात्मा गांधी का बस्ट. इट मीन्स स्मॉल स्टैच्यू. ओके, देन बांग्लादेशी फमीदा अजमी own the Pulitzer Prize. This is very important news guys. Award section. Award section is very important. Pulitzer Prize is very important. It's given for the journalism field. different जो जर्नलिज्म के पार्ट होते हैं, जैसे मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, एंड अलग अलग टाइप के होते हैं. फोटोग्राफी होती है जिसमें लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं. फोटोग्राफी किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन, पर्टिकुलर प्लेस के वहाँ की जो एक्चुअल कंडीशन होती है वहाँ से फोटोग्राफी सेंड करते हैं, जिसमें इंडिया के अदनान क्या नाम है उनका, अदनान आदमी एंड सना इरशाद एंड वन मोर पर्सन इज देयर जिनका डेथ हो गया था अफगानिस्तान में ग्राउंड रिपोर्टिंग के टाइम पे. उनका नाम देखो क्या था, याद नहीं आ रहा है मुझे. आई थिंक दानिश सिद्दीकी. सो इन लोगों को भी ग्राउंड रिपोर्टिंग फोटोग्राफी के लिए पुलित्जर प्राइज मिला है इंडिया से. एंड सी इज अ बांग्लादेशी फमीदा अजीम. सो इनको जो अवार्ड मिला है, बांग्लादेशी बॉर्न फमीदा अजीम वर्किंग फॉर द इनसाइडर ऑनलाइन मैगजीन ऑफ द यूएस हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द पुलित्जर प्राइज. ठीक है, तो ये सब अलग अलग कैटेगरी है. सो इंडियन के भी पर्सनालिटीज के मिले हैं, इंडियन पर्सनालिटी को भी पुलित्जर प्राइज मिला है. दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर करंट अफेयर्स. सो यहाँ पे आप इनका नाम रिमेंबर रख सकते हो. एज वेल एज करंट अफेयर्स से पुलित्जर प्राइज को आप अपडेट कर लो, नोट बना लो. दिस अवार्ड इज हाईली एक्सपेक्टेड फॉर योर एग्जाम. नेक्स्ट वन इज अ सीनियर कांग्रेस लीडर शशि थरूर. देखो ये अवार्ड सेक्शन से है, अभी हम अवार्ड सेक्शन को कवर कर रहे हैं, तो जो भी अगस्त मंथ में इंपॉर्टेंट अवार्ड है दैट वी विल कवर. शशि थरूर टू रिसीव द France highest civilian award. So senior Congress leader Shashi Tharoor set up to confer with the France highest civilian award, that is a Cavalier de la Lazine डी ऑनर. अब ये थोड़ा सा फ्रेंच लैंग्वेज में ये नाम है, so it's difficult to pronounce, but this is the highest civilian award that is given to the Shashi Tharoor, and he is a very famous सीनियर कांग्रेस लीडर. ओके, सबको पता होगा. एंड ही इज़ अ वेरी गुड स्पीकर एंड इंग्लिश लैंग्वेज पे काफ़ी अच्छी कमांड है. इस पे काफ़ी कुछ आपने सोशल मीडिया पे मीम्स भी देखे होंगे. एंड ही इज़ वेरी फेमस लीडर. हाँ, सो इनको ये अवार्ड मिला है बिकॉज ही इज़ अ इंडियन पर्सनालिटी, वेल नोन कांग्रेस के लीडर भी हैं. सो एक अचीवमेंट है, एक गुड न्यूज़ है. सो अवार्ड सेक्शन से एक्सपेक्टेड हो सकता है एग्जाम्स के लिए. Next one is a Professor Ramdhar Singh become the first Indian social psychologist on US Heritage Wall of Fame. So यहाँ पे one more award given to the Indian professor and his name is Professor Ramdhar Singh. So he is the first Indian, so that's why again it's important for exam. So Ahmedabad University Professor Ramdhar Singh become the first Indian social psychologist on US Heritage Wall of Fame of the Society for the Personality and Social Psychology in the United States. So guys, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज एक इंटरनेशनल लेवल पे एक फेम है, एक नाम है, एक अवार्ड है, तो क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी हो जाती है. ओके, इंडियन अमेरिकन आर्या वालेनकर क्राउन मिस इंडिया यूएसए 2022. ठीक है, सो इस टाइप के जो पैजेंट होते हैं वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं. मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स. आप मिस यूनिवर्स से देख सकते हो क्वेश्चन पूछा गया है जब भी मानुषी चिल्लर को सेलेक्ट किया गया था. तो इस टाइप के जो ब्यूटी पैजेंट होते हैं उससे भी क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी होती है. तो जो भी एज पर मंथ वाइज यहाँ पे दिख रहा है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट. बट हाँ, जब भी दिसंबर में अनाउंसमेंट आएगा मिस वर्ल्ड एंड मिस यूनिवर्स का, नवंबर से दिसंबर के बिटवीन, वो आपके लिए, आपके एग्जाम्स के लिए हाईली इंपॉर्टेंट होगा. ओके, सो इंडियन अमेरिकन फ्रॉम द वर्जीनिया आर्या वालवेकर हैज क्राउन द मिस इंडिया यूएसए 2022 इन न्यू जर्सी. ठीक है, तो अभी के लिए इतना रिमेंबर करो. बट अपकमिंग टाइम नवंबर एंड दिसंबर, फ्रॉम नवंबर एंड दिसंबर, दैट टू ब्यूटी पैजेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स. ओके, नेक्स्ट इज अंतिम पनगल, इंडिया फर्स्ट एवर under 20 world champion in wrestling. So from sports section this news is very important because she is a world champion. So name of the player and she related to which field, that is important. Okay, so she won the world championship in wrestling field. Now 14 number important news from the sports section. Aslan Shah Cup in
ईयूफा मलेशिया फ्रॉम नवंबर 16 to 25 गाइज। सो यहाँ पे अजलन शाह से रिलेट करके जो मोस्टली क्वेश्चन आता है, अजलन शाह कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। सो अभी इसका जो भी टूर्नामेंट होगा, जब ये मैच होगा हॉकी का टूर्नामेंट, सो उस टाइम पे अपने को अपडेट करना होगा। एंड वॉट एवर द कंट्री, जो भी कंट्री वोन करती है वो वी हैव टू अपडेट। अदरवाइज अजलन शाह इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। इट्स रिलेटेड टू द हॉकी। नेक्स्ट वन इज अ फर्स्ट खेलो इंडिया वुमेन्स हॉकी लीग अंडर 16 टू बी हेल्ड मेजर ध्यानचंद स्टेडियम। सो यहाँ पे फर्स्ट खेलो इंडिया फॉर वुमेन्स हॉकी लीग अंडर 16 शेड्यूल टू बी हेल्ड एट द मेजर ध्यानचंद स्टेडियम न्यू दिल्ली। सो देखो यहाँ पे स्टेडियम पॉइंट ऑफ व्यू से रिमेंबर रखना, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम, वेयर इज इट, इन न्यू दिल्ली। एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम अंडर 16 वुमेन्स के लिए ये स्पोर्ट स्टार्ट किया गया। सो इंपॉर्टेंट है इस स्पोर्ट्स सेक्शन से। सुनील छत्री एंड मनीषा कल्याण नेम मेंस एंड वुमेन्स फुटबॉलर ऑफ द ईयर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज गाइज फ्रॉम द स्पोर्ट्स सेक्शन। एंड लास्ट ईयर अगर से आपको याद होगा 2020-21 में एक क्वेश्चन आया था, हु इज द फादर ऑफ इंडियन फुटबॉल, हु इज द फादर ऑफ इंडियन फुटबॉल। सो नागेंद्र प्रसाद करके नाम था उनका। सो पॉसिबिलिटी ये क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, तो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट न्यूज। सो इन दोनों पर्सनालिटी, स्पोर्ट पर्सनालिटी का नाम आप रिमेंबर रखो। नेक्स्ट वन इज द इंडियन चेस लीजेंड विश्वनाथ आनंद बिकम द FIDE डिप्टी प्रेसिडेंट। सो आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी बता दो, ही इज द फर्स्ट स्पोर्ट पर्सनालिटी हु रिसीव द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। एंड दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड आई थिंक 2019 के एग्जाम्स में टिस में आया भी था, ठीक है। सो इंडियन चेस लेजेंड विश्वनाथ आनंद वाज इलेक्टेड डिप्टी प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल चेस फेडरेशन ऑफ द वर्ल्ड चेस फेडरेशन। और अभी चेस इंटरनेशनल टूर्नामेंट चल भी रहा है इंडिया में, एज वेल एज रिलेटेड टू मेजर ध्यानचंद, जो अभी मेजर ध्यानचंद बोलते हैं, इसके पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था। कंटिन्यू आप देखोगे लास्ट 3 ईयर से किसी न किसी वे में क्वेश्चन आ रहा है। सो मेजर ध्यानचंद या फिर राजीव गांधी खेल रत्न हु इज द फर्स्ट रिसिपिएंट। सो नाम याद रखो विश्वनाथ आनंद, ओके। और करंट का जो अभी अनाउंसमेंट आएगा नवंबर मंथ में, सो यू हैव टू अपडेट गाइस, वो अपडेट कर लेना सारे स्पोर्ट्स अवार्ड, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन इज acclaimed dancer Mallika Sarabhai turn author release his memoir Free Fall. So books and author point of view से important है, well known dancer है, she is a very well known dancer and his book name is In Free Fall. So remember रखो, writer of this book is Mallika Sarabhai and she is a very well known dancer. Next one is a book titled Lion of Hardeep Singh Malik by the Stephen बार्कर। सो बुक्स एंड राइटर पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। अगर इसके डिटेल्स को आप रीड करेंगे, सो द बुक टाइटल लायन ऑफ हरदीप सिंह मलिक, द रॉयल एयरफोर्स एंड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इज ऑल अबाउट द इंडियन फर्स्ट फाइटर पायलट। सो इंडिया के फर्स्ट फाइटर पायलट से रिलेटेड ये पूरी बुक्स में स्टोरी है, अपने लिए इंपॉर्टेंट है। बुक्स एंड राइटर पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है। द बुक हैज बीन रिटन बाय द ऑथर स्टेफन ब्रॉकर हु डिस्क्राइब in a great details how challenging it was for Indian to serve in a British armed forces fighting racial discrimination both institutional and interpersonal level पे, ठीक है। सो बेसिकली इंडियन जो पर्सनालिटी, इंडियन पर्सनालिटी जो ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स में उस टाइम पे जॉब करते थे, अपनी सर्विस देते थे, उसमें कितना डिफिकल्ट था, उसी से रिलेट करके सारी चीजें हैं। सो बुक्स एंड राइटर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन इज द बुक टाइटल डेंजरस अर्थ बाय मरीन बायोलॉजिस्ट एलन पार्गर। सो अगेन टिस ओरिएंटेड जो इकोलॉजी सिस्टम इन्वायरमेंट से रिलेट करके क्वेश्चन काफी पॉसिबल होते हैं टेस्ट के लिए। सो दिस बुक से पॉसिबिलिटी हो सकती है बुक्स एंड राइटर पॉइंट ऑफ व्यू से। सो मरीन बायोलॉजिस्ट एलन पार्गर हैज कम अप with the book title Dangerous Earth, What We Wish We Know About the Volcano, Hurricane, Climate Change, Earthquake and more. So basically this book focus on why can't we better predict natural disaster. So books and writers के लिए important है, details आप read कर सकते हो। Next one is a Justice Uday Umesh Lalit take oath of 49 Chief Justice of India. Guys, very very important news, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज फ्रॉम अपॉइंटमेंट सेक्शन। एंड आपसे एग्जामिनर सिंपल सा यही चीज पूछेगा, कौन से नंबर के ये चीफ जस्टिस है, 49, 48, 50, 51, इस तरह से आएगा। आपको नाम तो पता होगा क्योंकि आपने करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से स्टडी किया है, बट कौन से नंबर के चीफ जस्टिस है इस पर कोई फोकस नहीं करता और एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है।
ठीक है, सो ये आपको रिमेंबर रखना है कि कौन से नंबर के ये चीफ जस्टिस है, नाम तो सबको पता होता है। नेक्स्ट वन इज प्रोफेसर अनंत नारायण गोपाल कृष्णन अपॉइंटेड एज अ सेबी होल टाइम मेंबर। सो सेबी इज ए इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सो वहां पे अपॉइंटमेंट हुआ है, अपॉइंटमेंट सेक्शन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो जस्ट रिमेंबर द नेम ऑफ हिम। Next one is the Indian scientist Samir V. Kamath appointed as the DRDO chairman. Very important. DRDO is a very important institution. DRDO, ISRO, यहाँ पे कोई भी अपॉइंटमेंट होता है सो हाईली एक्सपेक्टेड हो जाता है एग्जाम्स के लिए, तो आप इसको रिमेंबर रखो। हेडक्वार्टर ऑफ DRDO, वेयर इज इट? न्यू दिल्ली। ओके, राजेश वर्मा नेम एज अ सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। सो यहाँ पे इनको सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है। सो दोनों न्यूज इंपॉर्टेंट है बिकॉज द्रौपदी मुर्मू सी इज ऑल्सो इलेक्टेड फॉर प्रेसिडेंट। सो आपको पॉलिटी सेक्शन से कंप्लीट स्टडी करना है इंडिया के प्रेसिडेंट से रिलेटेड, अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, एलिजिबिलिटी, इम्पीचमेंट, सारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर आपको अच्छे से स्टडी करके जाना। हाईली पॉसिबल है 1 मार्क्स का क्वेश्चन प्रेसिडेंट से रिलेट करके। करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे इनको सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया, तो जस्ट रिमेंबर हिज नेम। नेक्स्ट वन इज द IIT गुवाहाटी डेवलप द टेक्निक फॉर मेकिंग द सुगर सब्स्टिट्यूट एंड इट्स जाइलेटोल बोलते हैं इसको, जाइलेटोल एक टाइप का स्वीट थिंग्स होता है। सो रिसर्चर एंड IIT गुवाहाटी have created the fermentation process that use the ultrasound to the safely generate the xylitol from the sugarcane baxes as a byproduct of the crossing the sugarcane. So basically एक टाइप का यहाँ पे सब्सिट्यूट यहाँ पे टेक्निक डेवलप किया है IIT गुवाहाटी ने। सो साइंस एंड टेक्नोलॉजी फील्ड से इंपॉर्टेंट है। इंडिया फर्स्ट ऑब्जर्वेटरी टू मॉनिटर द स्पेस एक्टिविटी टू कम अप इन उत्तराखंड। सो this is also the first observatory from the science and technology field से important है। so first observatory to monitor the space, so just remember the name of the place, उत्तराखंड में इसको सेटअप किया गया है। next one is the ISRO received the crew model fairing from HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड फॉर गगनयान मिशन। तो यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हैं, एक टाइप का इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे इसरो को मिला है फ्रॉम द HAL। So Hindustan Aeronautics Limited handed 2 pieces of the space equipment to the Indian Space Research Organization ISRO for use in the Gaganyaan mission. So उसी से रिलेट करके यहाँ पे न्यूज आया है। गगनयान मिशन से रिलेट करके जो भी अपकमिंग अपडेट्स आएंगे गाइस, अपडेट रहना है अपने को, हाईली पॉसिबल है यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने का। नेक्स्ट वन इज अ फॉर्मर ओलंपिक फुटबॉल कैप्टन समर बद्रू बनर्जी पास्ड अवे। सो ऑबिचरी सेक्शन से क्वेश्चन है, रिमेंबर हिज नेम, इंपॉर्टेंट है। फॉर्मर इंडियन फुटबॉल टीम कैप्टन समर बद्रू बनर्जी who led the country to the historic 4th place finish in the 1956 Melbourne Olympic has passed away recently. So 4th पोजीशन तक उस टाइम पे इंडिया ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया हुआ है। अभी हम तो क्वालिफाई भी नहीं कर पाते। ओके, अभी हमारी रैंकिंग आई थिंक 105, 6, 7, 8 ऐसे ही चलते रहता। अंडर 100 भी एक बार शायद से आया था, एक बार 96 तक आया था, बहुत टाइम 2 years पहले मैंने स्टडी किया था, बट आउट ऑफ 100 ही अभी इंडिया की रैंकिंग है। ओके, सो जस्ट रिमेंबर हिज नेम एंड फुटबॉल से रिलेट करके क्वेश्चन भी आया था जैसे मैंने आपको बताया 2021 में हु वाज द फादर ऑफ हु इज द फादर ऑफ इंडियन फुटबॉल। ओके, सो नारायण प्रसाद करके नाम था उनका। बैटन प्रोड्यूसर अब्दुल गफ्फार नांदियावाला पास्ड अवे। सो फेमस प्रोड्यूसर्स, which means obituary section से हम कंटिन्यू कवर कर रहे हैं। सो फेमस, ही इज अ फेमस प्रोड्यूसर। सो वेटरन फिल्म मेकर अब्दुल गफ्फार नांदियावाला पास्ड अवे एट द एज ऑफ 91 एंड इन्होंने काफ़ी दिया है। 15 हिंदी फिल्म इंक्लूडिंग द 1965 महाभारत एंड हिट comedies in 2000s के पीरियड सच एज द हेरा फेरी एंड वेलकम। सो ही हैड स्टार्टेड द फिल्म प्रोडक्शन एंड मीडिया एंटरटेनमेंट कंपनी 1953। तो ये सब सारे रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन है इनके, बट इंपॉर्टेंट एक वेल नोन पर्सनालिटी है। सो जस्ट रिमेंबर। वैटन स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला पास अवे। सो काफ़ी सैड न्यूज़ था ये, स्पेशली स्टॉक मार्केट एंड इन्वेस्टर्स के लिए जब ये न्यूज़ आया। सो वैटन स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला पास अवे at the age of 62. So it was very sad news for Indian stock market. After referred as the Indian Warren Buffett and the big bull of Indian market. So Jhunjhunwala net worth $5.8
बिलियन। सो गाइज थोड़ा सा स्टॉक मार्केट एंड इनसे रिलेट करके अपडेट रहना, हो सकता है किसी टर्म्स में क्वेश्चन पूछ दे, किसी वे में क्वेश्चन पूछ दे, तो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, थोड़ा सा इनके बारे में स्टडी भी कर लेना बिकॉज इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। 17 years old pilot Mac Rutherford set up record for solo flight around the world. Simply just remember his name. Simply just remember his name क्योंकि इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, इस तरह के जो रिकॉर्ड होते हैं ना टिस में पूछे जाते हैं। कंटिन्यू 2-3 ईयर्स के क्वेश्चन आप देखोगे ना, इस टाइप के एक एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जिसमें हम मोस्टली फोकस नहीं कर पाते। सो जस्ट रिमेंबर हिज नेम ओनली, मैक रदरफोर्ड, जिसने ये रिकॉर्ड बनाया। सो 17 years old पायलट मैक रदरफोर्ड बिकम द यंगेस्ट पर्सन टू फ्लाई द सोलो अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, नेक्स्ट वन इज अ यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट, इंडिया नॉमिनेटेड गरबा। सो इंडिया से गरबा जो डांस है, गुजरात का वेरी फेमस डांस, उसको दिया गया। गरबा से रिलेट करके लास्ट ईयर ही क्वेश्चन आया एग्जाम्स में, आप देख सकते हो पेपर एनालिसिस में। नाउ दुर्गा पूजा इज अ वेरी फेमस फेस्टिवल ऑफ वेस्ट बंगाल। जब भी उसको इंडिया ने नॉमिनेशन के लिए दिया था, एंड इट इज अ लिस्टेड इन हेरिटेज, इंटेंजिबल हेरिटेज कल्चरल लिस्ट, तो वो उससे रिलेटेड करके क्वेश्चन भी काफी आया था। सो अभी इसके नॉमिनेशंस को दिया गया है, तो अगर कुछ अपडेट आएगा तो डेफिनेटली वी विल अपडेट यू, बट अभी के लिए आपको रिमेंबर रखना, इंडिया हैज नॉमिनेटेड द इंडियन डांस फॉर गरबा टू बी inscribed on UNESCO intangible cultural heritage list. So आपको ये रिमेंबर रखना है। So next one is a super Vasuki Indian Railway longest freight train. So this is the longest freight train है। Indian Railway conducted the test run of its latest train called the Super Vasuki. अब आपको सिर्फ इतना रिमेंबर रखना है कि from which zone. So it's operated by the South East Central Railway zone of the Indian Railway. इतना सिर्फ आपको अभी के लिए अपडेट करके रखना है। Okay guys, so last question, last news from today. So Tamra Walcott lifted 737.5 kg to break powerlifting Guinness World Record. So again यहाँ पे एक रिकॉर्ड है, फेमस पर्सनालिटी है इंटरनेशनल न्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। सो जस्ट रिमेंबर हर नेम ओनली, दैट्स इट। ओके, आपको इंटरेस्ट है सो यू कैन रीड, यू कैन थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन अपडेट कर सकते हैं, अदरवाइज दैट्स इट, जस्ट रिमेंबर हर नेम, सी इज रिलेटेड टू द पावर लिफ्टिंग एंड इन्होंने जो रिकॉर्ड बनाया है, दैट्स इट। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है। Okay, so these all are the important current affairs from different field, award section, national, international, obituary section and books and writer, जो भी expected था एग्जाम्स के लिए वो मैंने सारे इंक्लूड कर दिया। और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, बट इंपॉर्टेंट 30 न्यूज़ को मैंने यहाँ पे कवर किया। इट विल गिव यू द हिंट गाइस कि किस वे में क्वेश्चन, कहाँ से क्वेश्चन फॉर्म होते हैं, एंड आप प्रीवियस ईयर के पेपर देख सकते हो, इसी टाइप के क्वेश्चन सारे एग्जाम्स में आते हैं करंट अफेयर से, एज वेल एज स्टैटिक ओरिएंटेड, कहीं ना कहीं करंट अफेयर से कनेक्ट करके। ओके, सो इफ यू वांट टू प्रिपेयर एंड सीरियसली एंड जीके सेक्शंस आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लम है, so here you can inquire and you can join our live classes, classroom, books, mock tests and everything we will provide to crack and फाइनल सिलेक्शन तक के लिए सारे स्टेप बाय स्टेप डेडिकेटेड टीम्स हैं एंड विथ राइट कंटेंट एंड राइट मटेरियल के साथ। सो फॉर ऑनलाइन यू कैन इंक्वायर हियर 8828581455 एंड फॉर मुंबई, इफ यू आर मुंबई बेस्ड स्टूडेंट, सो क्लासरूम के लिए आप बोरीवली, वसई एंड दादर, यू कैन contact on these number or you can visit our website www.menuaredu.com. Okay guys, and don't forget to subscribe because you will get the continue update here related to the current affairs, any exam से related सारे updates आपको मिल जाएंगे, and you can join our social media platform also. And guys, if you have any doubt and query, कुछ भी doubt and query है, so just ask in comment, definitely I will reply, and जो भी relevant and best answer होगा you will get it. Okay, so चलो, see you in next video, next part with important general awareness topic, and don't forget to subscribe. Okay, Jai Hind.